Hello everyone, my name is Vaishali Sharma and I welcome you on my channel Varnavya Classes. If you are new to my channel, so please subscribe it, or if you like my video then please like and share it. Okay, so today we start the topic Coelom and its types. So let's begin. Okay, before we start with Coelom and its types, we recall some basics from animal kingdom. Okay, we all know in animal kingdom we have 11 phylum. What are these 11 phylum? Porifera, Coelenterata, Ctenophora, Platyhelminthes, Aschelminthes, Arthropoda, Mollusca, recall it again. ओके पॉरीफेरा आप इसलिए आपको लोगों को भी याद होने चाहिए फाइलम्स. ओके तो पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथेस, एस्केल्मिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकारियोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिटा एंड कॉर्डिटा. ओके तो दीज आर 11 फाइलम्स. मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये सब? बिकॉज we use it in our chapter in examples and all, so you know these are 11 phyla and in which we categorize them as coelomates, coelomates or pseudocoelomates. Okay, so let's begin with coelom. What is coelom? Coelom क्या होता है? It is a fluid filled cavity. एक cavity होती है, एक खाली जगह होती है. Cavity between body wall and alimentary canal. You can also call it gut wall. Okay, alimentary canal. It is fluid filled cavity between body wall and alimentary canal lined by mesoderm. It is important because further we talk about pseudocoelomates, acoelomates, coelomates, types of coelom. Okay, types of organisms on the basis of coelom. So in which there is pseudocoelomates and true coelomates. जो ये डिफरेंस है वो हमें यहाँ से ही पता चलता है. ठीक है, मैं वैसे आगे बताऊँगी बट लेट मी टेल यू कि लाइन अगर coelom is not lined by mesoderm then it is not a true coelom, but it is lined by mesoderm then it is true coelom. Okay, so on the basis of coelom organism divides into 3 types: acoelomates, pseudocoelomates and eucoelomates. Okay, and eucoelomates further divides into schizocoelomates and enterocoelomates. Okay, so we will discuss one by one acoelomates, pseudocoelomates and then eucoelomates of then further schizocoelomates and enterocoelomates with examples. Okay, but let me explain it. What is coelom? Like this is our body wall. Okay, and this is our gut wall. I am not as much as good in diagram. Okay, so it is body wall and this is gut or gut wall you can say, or you can say alimentary canal. ठीक है, between these two this is known as coelom. This is a cavity which is known as coelom,
or in basis of, or on the basis of coelom, organisms are divided into acoelomates, pseudocoelomates, eucoelomates, and eucoelomates further divided into schizocoelomates and enterocoelomates. So what is acoelomates and pseudocoelomates and eucoelomates? We will discuss it now. We start with acoelomates. Okay, so let's begin. Acoelomates. We break down words in biology so we can find the actual meaning of this. Okay, so if A and this is coelomates, यानी कि the organism which A means absent, do not have cavity, यानी कि do not have fluid filled cavity between body wall and alimentary canal, or in simple language you can say if coelom is absent then organisms are known as acoelomates. A for absent and coelomates मतलब coelom यानी कि coelom absent. Okay, so lack fluid filled cavity between body wall and alimentary canal. Okay, this is between, are known as acoelomates. Example, if we talk about example, so अभी मैंने आपको 11 फाइला ऐसे बोलकर बताए थे, तो उसमें जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे ना, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ऑल acoelomates. ओके, सो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से आप, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस. ऊपर के 4 जो फाइल हैं, 11 फाइला में जो स्टार्टिंग के 4 मैंने बोले थे वो क्या है, हमारे acoelomates होते हैं. ठीक है, तो आप पॉरीफेरा भी बोल सकते हो, पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस. Okay, so these are the examples of acoelomates. Okay, so let me explain you it with a diagram. So I will take platyhelminthes. Okay, we called platyhelminthes flatworm also चपटे. ये चपटे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, दैट्स वाई दे ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स. तो हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं. ठीक है, इसको जब तुम यहाँ से कट करोगे ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, देन किस तरीके से दिखता है हमें, ये कुछ इस टाइप का दिखेगा. If you draw the diagram in exam, so it's a very game changer for you. So कोशिश करना कि डायग्राम तो बनाओ ही आप, अगर जूलॉजी में कोई आंसर लिख रहे हैं तो. ओके, ओके, ये क्या है, बॉडी वॉल एंड दिस इज गट, या और ये गट वॉल. Okay, or there is no cavity between them, there is no cavity, so you can make it like this. Okay, there is no cavity between this. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेसोडर्म होता है, बट पैरेन्काइमेटस मेसोडर्म भी पाया जाता है. सॉरी, you can call it ectoderm. You can call it ectoderm.
3 जर्म लेयर्स पढ़ी थी ना हमने, 3 जर्म लेयर्स हम पढ़ते हैं। ये थोड़ा मुझे पहले बताना चाहिए था, सॉरी। जर्म लेयर्स हम पढ़ते हैं 3, जिनसे हम बनते हैं। तो उसके बेसिस पर, मतलब जर्म लेयर्स यानी कि जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसको हम जर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन होता है वहाँ से। तो जिन ऑर्गेनिज्म में 2 लेयर से जर्मिनेशन होता है, यानी कि 2 लेयर से वो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अगर 3 लेयर से होता है तो उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस आर व्हाट, देखना एक बार क्या होता है, ठीक है। जर्म लेयर्स में क्या होता है, एक्टोडर्म होता है, 3 लेयर्स होती हैं, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जिनमें ये तीनों पाई जाती हैं, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है। और जिसमें ये एब्सेंट होती है, यानी कि सिर्फ ये दोनों पाई जाती है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ओके। तो ये तीनों एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, पहले तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये डिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे क्या होता है, बाहर वाली लेयर को हम एक्टोडर्म कहते हैं, अंदर वाली लेयर को हम एंडोडर्म कहते हैं, मिडल वाली को मेसोडर्म कहते हैं। तो एक्टोडर्म अंदर वाली क्या हो जाएगी हमारी एंडोडर्म, और बीच में कुछ कुछ पैचेस से पाया जाता है मेसोडर्म के, पैरेन्काइमेटस होती है, पैरेन्काइमा बोलते हैं इनको, पैरेन्काइमेटस होती है मेसोडर्म, ओके। तो ये है हमारा, बहुत खिचड़ी पक गई है, बट ये है हमारा टीएस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। और एसिलोमेट में आप ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया वगैरह होते हैं ना, आई थिंक प्लेटीहेल्मिन्थेस में, तो ये वही समझ लो। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन इन क्विक मैनर, ओके। एसिलोमेट्स, सिलोम एब्सेंट, एग्जाम्पल्स दीज 4, टीएस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस, एक्टोडर्म, अंदर वाली एंडोडर्म, देयर इज नो कैविटी, ओके। मेसोडर्म इज प्रेजेंट इन बिटवीन। जर्म लेयर्स, ये जो हमने पढ़ा है ना, ये हमने बेसिक रिकॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे आया तो मैंने इसलिए बता दिया, ओके। नाउ स्टार्ट विद सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स, सूडो से समझ में आ रहा, दैट इज फॉल्स, and I have already told you कि सूडो, फॉल्स और ट्रू सिलोम में फ़र्क क्या होता है, ओके। फॉल्स सिलोम, दैट द सिलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, एंड ट्रू सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म, ओके। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स सिलोम एंड ट्रू सिलोम। तो सूडोसिलोमेट मीन्स फॉल्स सिलोम, दैट मीन्स fluid filled organism having fluid filled cavity between organisms have fluid filled cavity between body wall and alimentary canal which is not lined by mesoderm, यानी कि यहाँ पे भी mesoderm लाइन नहीं करती है, ठीक है। नॉट लाइन बाय mesoderm इज नोन एज सूडोसिलोमेट्स, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एस्केलमेंथिस होता है, अगर हम मेजर फाइला की बात करें तो एस्केलमेंथिस, और अगर हम माइनर फाइला की बात करें तो इसमें आ जाते हैं हमारे निमर्टिया भी आ जाता है, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, ये माइनर फाइला है जिनके बारे में हम पढ़ते हैं ना, हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। और निपैथेलमेंथिस भी होते हैं, ठीक है। एस्केलमेंथिस, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, ये सारे होते हैं, ओके। एस्केलमेंथिस ऑल्सो नोन एज
निमेथिलमेंथिस, निमेथिलमेंथिस को ही एस्केलमेंथिस बोल देते हैं। अब अगर हम टीएस ऑफ निमेथिलमेंथिस से डिस्कस करते हैं इसको डायग्राम के साथ। ये जो एस्केलमेंथिस या निमेथिलमेंथिस होते हैं ना, ये राउंड वॉर्म्स की कहते हैं इनको, इस टाइप से, ठीक है। इनके अगर हम टीएस लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है। Cut. This is mesoderm. Okay. Outer layer, ectoderm, inner layer, endoderm, and this is mesoderm. Okay. ये है हमारी सिलोमिक कैविटी। सिलोमिक कैविटी किसकी है? सूडोसिलोमेट्स की है, इसीलिए इसको, इसमें कौन सा फ्लूइड होता है? सिलोमिक फ्लूइड होता है। और इसमें रैमनेंट्स पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के। क्या पाए जाते हैं? रैमनेंट्स, यानी कि बचा हुआ माल ऑफ एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के, ठीक है। यहाँ पे रेमनेंट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे रेमनेंट्स पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के, इसीलिए इनको सूडोसिलोमेट्स को ब्लास्टोसिलोमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी सिलोमिक कैविटी में एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के कुछ रेमनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। सूडोसिलोमेट्स क्या होता है? जिनके पास फॉल्स सिलोमेटर, यानी कि जो सिलोम है प्रेजेंट तो होती है बट लाइन नहीं होती मेसोडर्म से। और एग्जांपल हो गया एस्केलमेंथिस ऑर्टिफेरा गैस्ट्रोटाइका। एस्केलमेंथिस को निमेथिलमेंथिस भी बोलते हैं, ये एक आपस में यूज किए जाते हैं। निमेथिलमेंथिस का टीएस हमने देखा, एक्टोडर्म हो गया, एंडोडर्म राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और पहले वाला जो हमने बताया प्लेटिहेलमिन्थिस थे, जो चपटे होते हैं, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं उन्हें। गट हो गया, एंडोडर्म, और ये जो पैचेस है ये हमारे क्या हो गए? मेसोडर्म, और ये है हमारी सिलोमिक कैविटी, जिसमें सीडोसिलोमिक फ्लूइड पाया जाता है, क्योंकि सीडोसिलोम की कैविटी है तो उसमें वही फ्लूइड भी पाया जाएगा। और उसमें क्या पाया था? रैमनेंट्स पाए थे एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसिल के, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिलोमेट्स भी कहा जाता है। ओके, so today we have covered Silomates types topics, in which we have covered Asilomates, we have covered Pseudosilomates. In our next class we cover Eusilomates and types Schizo and Entero, and also we have cover other topic, that is protostomes and deuterostomes. So please be with me and please subscribe my channel ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको पता चले। And if you like my video, so please like it also and share it as much as you can. Okay, thank you.